بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 8 کی سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کے 7th ویڈیو میں پیج نمبر 19 کے اوپر کوسچن آنسرز کو ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو اس لیکچر میں تھوڑی سی اوور ویو دوں گا کیونکہ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ڈیفائن کمپیوٹر نیٹورک، وائی ڈو وی یوز نیٹورکنگ۔ کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفینیشن کریں اور ہم نیٹورکنگ کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جائے کسی کمیونیکیشن میڈیم کے تھرو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز اور انفارمیشن شیئر کر سکے تو اس کو ہم کمپیوٹر نیٹورک کہتے ہیں یا نیٹورک کہتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹورک ریسورس شیئرنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے پرنٹر، اسکینر، سافٹ ویئر، گیمز وغیرہ آپ اس کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں، جیسے الیکٹرانک میل، ای میل کے تھرو، چیٹنگ، ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ کے تھرو۔ ایکسپلین کمپوننٹس آف اے نیٹورک اور اے کمپیوٹر نیٹورک۔ ایک نیٹورک کے کمپوننٹس آپ ایکسپلین کریں۔ ہمارے ساتھ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر نیٹورک میں۔ سینڈنگ ڈیوائس، وہ ڈیوائس جو ڈیٹا انفارمیشن کو سینڈ کرتے ہیں انہیں سینڈنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ سینڈنگ ڈیوائس کو سورس اور ٹرانسمیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایک کمپیوٹر نیٹورک میں سینڈنگ ڈیوائس کمپیوٹر ہی ہوتا ہے۔ ریسیونگ ڈیوائس اس ڈیوائس کو کہتے ہیں جو ٹرانسمیٹڈ ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے۔ ریسیونگ ڈیوائس کو سنک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کمپیوٹر نیٹورک میں کمپیوٹر، پرنٹر، پلاٹر ریسیونگ ڈیوائس ہو سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن ڈیوائس کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر نیٹورک میں کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں ہوگی تو آپ کمپیوٹر نیٹورک نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن ڈیوائس ہی ہوتی ہے جس کے تھرو کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ ایگزامپلز میں موڈیم بہت زیادہ استعمال ہونے والا کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو کہ ہم انٹرنیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ، بلوٹوتھ، وائی فائی، سوئچ، ہب، یہ ساری کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں۔ ٹرانسمیشن میڈیم وہ میڈیم ہے جس کے تھرو ہماری کمیونیکیشن سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ 2 طرح کی ٹرانسمیشن میڈیم ہوتی ہے، ایک کو وائرڈ کہتی ہے جیسے ٹویسٹڈ پیئر کیبل، کویکسل کیبل، فائبر آپٹکس کیبل، اور وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیم میں ہمارے ساتھ سیٹلائٹ کمیونیکیشن، مائکرو ویو اور انفراریڈ۔ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن کلائنٹ اینڈ سرور۔ کلائنٹ سرور اس نیٹورک کو کہتے ہیں جس میں ایک سینٹرلائز اور پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو سرور کہا جاتا ہے، اور دوسرے تمام کمپیوٹر جو اس سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں انہیں کلائنٹس کہتے ہیں۔ کلائنٹس کمپیوٹر سرور پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر سرور آف ہو جائے تو ایک نیٹورک میں سروسز اویلیبل نہیں ہوں گے۔ عام طور پہ سرور کمپیوٹر بہت پاورفل ہوتا ہے کلائنٹس کمپیوٹر کے مقابلے میں۔ ہائی پروسیسنگ سپیڈ ہوتی ہے اس کی، میموری بھی زیادہ ہوتی ہے اور لارج ڈسک ڈرائیوز اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈسکس بریفلی ڈفرنٹ ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹورکس اور ڈسکس کلاسیفیکیشن آف نیٹورکس اکارڈنگ ٹو دا جیوگرافیکل باؤنڈریز۔ جغرافیائی لحاظ سے ہم کمپیوٹر نیٹورکس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 ٹائپس میں: لین، مین، وین۔ لین لوکل ایریا نیٹورک اس کمپیوٹر نیٹورک کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹے سے ایریا کو کور کرے، جیسے گھر میں ایک کمپیوٹر نیٹورک بنا ہو، آفس میں، ایک بلڈنگ میں یا ایک لیبارٹری میں جو کمپیوٹر نیٹورک بنا ہوتا ہے اسے لین کہتے ہیں۔ ایکسپلینیشن: لینز انیکسپینسو ہوتے ہیں، آپ اس کی انسٹالیشن آسانی سے کر سکتے ہو۔ عام طور پہ جو ٹرانسمیشن میڈیا اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل، کویکسل کیبل، فائبر آپٹک کیبل جس میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیٹورک اڈاپٹر، ہب وغیرہ ایک لین کو بناتے ہیں۔ لوکل ایریا نیٹورک بنانے کے لیے ہم ان کمیونیکیشن ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں۔ لوکل ایریا نیٹورک میں ڈسٹینس لمیٹڈ ہوتی ہے، اس لیے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن لین میں یہ ہے کہ آپ لمیٹڈ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کہاں پہ لین استعمال ہوتا ہے؟ انفارمیشن اور ریسورس شیئرنگ کے لیے، جیسے فائلز، گیم وغیرہ کے لیے ہم لین کا استعمال کرتے ہیں، یا اگر یوزرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی لین کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لین کو آپ نیٹورک کے انٹرنیٹ کے ساتھ یا وائڈ ایریا نیٹورک کے ساتھ بھی کنیکٹ کروا سکتے ہیں۔ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک اس نیٹورک کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک سٹی یا ایک لارج کیمپس کو کور کرے۔ یہ لین کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے لیکن وین کے مقابلے میں یہ چھوٹا نیٹورک ہوتا ہے۔ مین نیٹورک جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کی انسٹالیشن مشکل ہوتی ہے اور آپ کو فاسٹ نیٹورکنگ کمپوننٹس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کی ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے۔
तो उसके लिए आपको फास्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक केबल इसमें प्रेफर किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क कहलाता है जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर करे, जैसे मुख्तलिफ सूबों को, कंट्रीज़ को या कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाए। ऐसे नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है लेन के मुकाबले में और वैन के मुकाबले में। यहाँ पे गलती से वैन लिखा है, आप इसको मेन कर दे। नॉर्मली वैन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड लेन्स और मेन्स। आमतौर पे एक वाइड एरिया नेटवर्क लेन्स और मेन्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे मिलकर बनता है। वाइड एरिया नेटवर्क टेलीफोन लाइंस या DSL के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू बनता है। एग्जाम्पल्स में हमारे साथ इंटरनेट है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे PIA का टिकटिंग सिस्टम, बैंकों के मुख्तलिफ ब्रांचेस सारे वैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मोडेम एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो कंप्यूटर डेटा सेंड करे या जो कंप्यूटर डेटा रिसीव करे, दोनों के पास मोडेम होना ज़रूरी है। मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तब्दील करना। डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में तब्दील करना। मुख्तलिफ टाइप्स है यहाँ पे। इंटरनल मोडेम, वो एक्सपेंशन कार्ड जो कि हम एक्सपेंशन स्लॉट में मदरबोर्ड के ऊपर प्लग करते हैं, उस मोडेम को हम इंटरनल मोडेम कहते हैं। एक्सटर्नल मोडेम और वायरलेस मोडेम ये हम बाहर से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। एक्सटर्नल मोडेम के लिए आपको केबल की ज़रूरत पड़ती है और वायरलेस मोडेम के लिए आपको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट नोट ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे एक नोट लिखें। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ये डेटा को कंट्रोल करता है, सेंड करता है, रिसीव करता है। ये इस तरह के काम करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क में। इसको लैन एडाप्टर भी कहते हैं या सिंपली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC नेक भी कहते हैं। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जिसके थ्रू हर एक कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन भी होती है। आजकल हमारे साथ वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को एक्सप्लेन करें या वायर ट्रांसमिशन मीडिया, दोनों एक ही चीज़ है। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया उन केबल्स को कहा जाता है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन सिग्नल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम के एग्जांपल्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल पुरानी, सिंपल, सादा और इनएक्सपेंसिव और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली ट्रांसमिशन मीडियम है। इसमें पेयर ऑफ वायर्स होते हैं जिनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि इसमें नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये इनएक्सपेंसिव है और इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है वो RJ45 कनेक्टर इसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल वो सबसे पहला केबल था जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया था। इसमें भी एक कॉपर वायर होता है जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि बाहर से कुछ इंटरफेरेंस ना हो। कोएक्सियल केबल लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यह ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में महंगा होता है, लेकिन इसमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। कोएक्सियल केबल वही केबल है जो कि घरों में केबल टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो कनेक्टर का इस्तेमाल होता है उसको BNC कनेक्टर कहा जाता है, बायोनेट नीन कांसलमैन। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ही एडवांस और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं उनकी मोटाई इंसानों के बालों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इन फाइबर्स को फिर एक प्रोटेक्टिव ट्यूब में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है जो किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हर एक इन्वायरमेंट के लिए इसका जो प्रोटेक्टिव ट्यूब होता है ये इनको प्रोटेक्ट करता है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है लेकिन इसमें डेटा लॉस की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल को हम इंटरनेट या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट नोट ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज।
कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जदीद टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है। एग्जांपल्स में हमारे साथ सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस, ब्लूटूथ, ये हमारे साथ कुछ जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मिसालें हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वॉइस और डिजिटल डेटा के लिए। मोबाइल फ़ोन या सेल फोन जो है ये सेलुलर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन फोन्स के ज़रिए आप सेलुलर कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है सेलुलर कम्युनिकेशन के? इनएक्सपेंसिव है और साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। आप एक जगह तक महदूद नहीं रहते और लार्ज एरिया को कवर करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाइड एरिया नेटवर्क की एक किस्म है जो कि रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक वाइड एरिया नेटवर्क की किस्म है जो कि आपको अलाउ करती है कि रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन को लाइव दुनिया के किसी भी कोने में आप सेंड कर सकते हो। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल थी या डिफ़िकल्ट थी जिस वक्त हमारे साथ सैटेलाइट्स नहीं होते थे, और आजकल सैकड़ों की तादाद में कमर्शियल सैटेलाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, जीपीएस के लिए भी, साथ में साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। आजकल सैटेलाइट फ़ोन्स भी आ गए हैं जो दुनिया में कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिग्नल की जो मसले मसाइल थे वो अब नहीं रहे इसमें। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि किसी शख्स की या किसी ऑब्जेक्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको बताती है। जीपीएस को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी शख्स या ऑब्जेक्ट की लोकेशन मालूम करने के लिए, या अगर कोई व्हीकल, कोई गाड़ी वगैरह चोरी हो जाए तो उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जीपीएस नेविगेशन डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जो कि जीपीएस सिग्नल को रिसीव करती है। जीपीएस के कुछ फीचर्स हैं। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ड्राइवर्स को। जहाज़ों में भी ये जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जहाज़ों को भी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स लगे होते हैं, ट्रैफिक की कंडीशन भी बताती है। साथ में आपको जो नियर बाय होटल्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनकी लोकेशन भी आपको देता है। ब्लूटूथ का नाम हैरल्ड ब्लूटूथ, जो कि डेनमार्क का एक बादशाह था, 1000 साल पहले गुजर चुका है, उसके नाम पे बनाया गया है। यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि शॉर्ट रेंज में काम करती है, यानी तकरीबन 32 फीट या 10 मीटर तक ये काम करता है। ब्लूटूथ के ज़रिए जो आप सेल फोन्स को या कंप्यूटर्स या दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो सिक्योर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स, होमवर्क्स मिली है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, तो काइंडली अपने वर्क बुक्स, नोट बुक्स स्कूल ले आएँ ताकि बर वक्त चेक हो जाए। वस्सलाम।